Dear students, in the last class, I gave you some homeworks to do, and I hope that you would have completed your homework. So, before we start today's lecture, I would like to have a check of your homework. So, be ready, open your copy and match your homework, whatever I am going to tell you. So, I hope that you are ready to match your homework. Let us check what were the homework. The first was, वह रतन के बारे में बता सकता है. वह रतन के बारे में बता सकता है. Your active is, he can tell about Ratan. Let me repeat, he can tell about Ratan. Its passive will be, Ratan can be told about by him. Ratan can be told about by him. Let me change this one into 6 forms. Ratan cannot be told about him. Told about by him. Can Ratan be told about by him? Can Ratan not be told about by him? How can Ratan be told about by him? And why can Ratan not be told about by him? This was the answer of the very first question. Remaining other 3 questions, I will tell you only first form, and I hope that you will understand how to transform those first form into 6 forms. तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए. I gave you some hint in the last class how to translate such sentences, and I hope that you would have understood and you would have translated those sentences. तुम्हें यह काम अवश्य करना चाहिए. You must do this work. Its passive will be, this work must be done by you. This work must be done by you. Third, मैं उसे पढ़ाया करता था. Its active will be, I used to teach him. I used to teach him. Its passive will be, he used to be taught by me. He used to be taught by me. And the last one, रवि को उसके साथ खेलना चाहिए. Should. Ravi should play with him. Ravi should play with him. Its passive will be, he should be played with by Ravi. He should be played with by Ravi. These are the answers of your homework, and I am 100% sure that you would have matched your answer, and not only matched your answer, you would have corrected 100% of the answers as well. So, let us proceed. Let us try to understand the next section, missed example. And the next lecture will be your last lecture, in which there will be so many various things which we have to understand. But today, we have to understand the mixed examples of active passive. Let us check. The first is the sentences which give us the sense of order or command. जिन वाक्यों में किसका बोध हो? आदेश का बोध हो. यानी आप वाक्य पढ़ो और पढ़ते ही ऐसा लगे कि जैसे किसी ने किसी को आदेश दिया है. Someone has been ordered. Let us say, open the door. What will be its Hindi? ये ऐसे सेंटेंस बहुत लंबे नहीं होते. Such sentences are not very complicated and lengthy. They are very small and simple. Open the door. दरवाजा खोलो. जैसा आप किसी को बोलोगे open the door, तो क्या किसी को सलाह दे रहे हो? नहीं, सलाह नहीं दे रहे हो, आदेश दे रहे हो. Open the door. दरवाजा खोलो. Second, bring that chair. उस कुर्सी को लाओ. To bring that chair, open the door. All these sentences give us the hint of
someone is being ordered here. यहां पर किसी को क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है. तो हाउ शैल वी चेंज सच सेंटेंसेस इनटू पैसिव फॉर्म. इस सेंटेंस को हम कैसे पैसिव में बनाएं. तो लेट अस चेक आवर स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट लेट, thereafter object of active, be and V3. This is the simple structure, very small and very simple. So let us try to change the first example into passive form. Open the door. According to our structure, first of all we have to write let. Let. What is the structure? Object of active. ओपन द डोर में ऑब्जेक्ट क्या है? ओपन मतलब तो खोलना होता है. खोलना क्या ऑब्जेक्ट होगा? ये आप भी जानते हो. ओपन मतलब खोलना. आप खोलना कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो तो क्रिया है, काम हो रहा है. जिससे काम होने का बोध हो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या है? क्रिया है, वर्ब है. तो ओपन द डोर में ओपन वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर. तो लेट स्ट्रक्चर के हिसाब से द डोर, फिर क्या लिखे? बी. ओपन का V3 करना है, तो ओपन का V3 क्या होगा? ओपेंड. लेट द डोर बी ओपेंड. हिंदी हुई दरवाजा खोला जाए. एक्टिव में क्या हुआ? दरवाजा खोलो. अब पैसिव में हिंदी क्या हुई? दरवाजे को खोला जाए. जैसे दूसरे देखते हैं, ब्रिंग दैट चेयर. अगेन वी शैल चेंज दिस वन इनटू पैसिव अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रक्चर. व्हाट इज अवर स्ट्रक्चर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट लेट. I have written here late. Thereafter we have to write here object of active. What is the object of active? Bring that chair. Bring is your verb and that chair is the object. To let that chair be. Be and V3 form of bring is brought. Let that chair be brought. मतलब उस कुर्सी को लाया जाए. तो this is your passive. And I hope that you would have understood. इस तरह के कई सेंटेंसेस रहेंगे. क्लोज द विंडो, तो फट से लेट लगा दिए. लेट क्लोज तो वर्ब है, द विंडो ऑब्जेक्ट है. लेट द विंडो बी, अब क्लोज का तीसरा रूप क्लोज्ड हो गया. लेट द विंडो बी क्लोज्ड. ऐसे बनेगा. आराम से इस तरह के सेंटेंस को आप बनाओगे. दूसरा है, जिन वाक्यों में सलाह का बोध हो. द सेंटेंसेस विच गिव अस द सेंस ऑफ एडवाइस. जिस सेंटेंस में किसका बोध हो? सलाह का बोध हो. तो देखिए कैसे बनाते हैं. पहले तो हम लोग देखते हैं कैसे सलाह का बोध. हेल्प द पुअर. अच्छा, देयर विल बी ए कंफ्यूजन इन योर माइंड. बोथ द सेंटेंसेस विच गिव अस द सेंस ऑफ ऑर्डर एंड द सेंटेंसेस विच गिव अस द सेंस ऑफ एडवाइस. बोथ द सेंटेंसेस लुक अलाइक. They sound similar, but they are different. When they are translated into Hindi, you will understand that both of them are different. जब आप देखोगे ऑर्डर वाले सेंटेंस को और देखोगे सलाह वाले, देखोगे केवल, तो आपको दोनों एक जैसा लगेगा. यार एक ही तो है, इसमें दोनों में अंतर क्या है. लेकिन जब आप हिंदी करोगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि नहीं, इसमें सलाह दिया गया और इसमें आदेश. जैसे देखिए ऊपर आते हैं, ओपन द डोर, क्या होगा? दरवाजा खोल, आदेश है. दूसरा इसका नीचे वाला, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की मदद करो. क्या कोई किसी की मदद आदेश देके करवा सकता है कि सलाह दिया जा सकता है? मैं आपको कहूं कि कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की अभी सहायता करो, तो क्या मैं आपको आदेश दे सकता हूं? इट विल बी माई एडवाइस. ये मेरी केवल सलाह होगी कि भैया जितना संभव हो सके ऐसे लाचार लोगों की सहायता जिस ढंग से कर सको, पैसा दे करके या जो भी हो करो. तो ये मेरी एडवाइस होगी, ये मेरा ऑर्डर नहीं होगा. तो हेल्प द पुअर. अब आते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले देखिए, उससे थोड़ा भिन्न है इसका स्ट्रक्चर. पहले इसमें क्या लिखना? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव. तो हेल्प द पुअर में ऑब्जेक्ट क्या है? हेल्प. हेल्प ऑब्जेक्ट है. हेल्प की हिंदी क्या होती है? मदद करना. मदद करना का भी ऑब्जेक्ट होता है. जिससे काम करने का बोध हो वो क्रिया होती है. तो हेल्प. अब क्या बचा है? द पुअर. तो द पुअर ऑब्जेक्ट है. तो द पुअर according to the structure should again be and V3 verb का तीसरा रूप. तो verb यहाँ क्या था? help. The poor should be helped. हिंदी क्या हुई?
इधर हिंदी हुआ गरीबों की मदद करो, और जो पैसिव आपने किया तो गरीबों की मदद की जानी चाहिए, ये हुई हिंदी। जैसे दूसरा इसी का था, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। एल्डर्स मतलब क्या होता है? बड़े बुजुर्ग। अपने बड़ों का सम्मान करो। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, अपने बड़ों का सम्मान करो। तो ये आदेश नहीं है, ये आपके लिए किसी की सलाह है। तो चलिए इसमें ढूंढते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्या है? रिस्पेक्ट तो क्रिया है, योर एल्डर्स लिख लिए, योर एल्डर्स, क्योंकि स्ट्रक्चर में कहा गया पहले ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव लिखो। फिर क्या लिखना है? शुड, योर एल्डर्स शुड। फिर क्या लिखना था? बी, फिर लिखा बी। लास्ट में क्या करना था? V3। रिस्पेक्ट का V3 क्या होगा? रेस्पेक्टेड। योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, आपके बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए। ये हुआ आपकी हिंदी, इसका पैसिव का। आते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या है वो देखिए, जिन वाक्यों में प्रस्ताव या सुझाव का बोल। कई लड़कों को ये लग सकता है ये प्रस्ताव क्या? प्रस्ताव मतलब होता है जैसे मैं आपको कहूं चलो क्रिकेट खेलते हैं, एक प्रपोजल है मेरे तरफ से, मेरा एक प्रस्ताव है कि चलो मन नहीं लग रहा है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। यह सुझाव, अरे उसको बोलने दो, हाँ चुप डिस्टर्ब नहीं करो, ये मेरी सुझाव है कि उसको ऐसा करने देना चाहिए। तो ये सबको ही हम लोग प्रस्ताव या सुझाव, प्रपोजल या सजेशन कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ, जिन वाक्यों में प्रस्ताव या सुझाव का बोल। अब देखिए इसका क्या है, ऊपर में है जब आप पैसिव बना रहे थे तो लेट लगा रहे थे पैसिव के लिए, लेकिन इसमें एक्टिव में ही लेट लगा हुआ, दोनों में अंतर है। इसमें एक्टिव में इसकी पहचान है शुरू किससे होगी? लेट से। बनाएंगे कैसे वो देखिए, या तो इट इज प्रपोज, ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, इट इज रहेगा। अब आप पर है कि वहां प्रपोज्ड लिखो या इट इज सजेस्टेड लिखो, इट इज प्रपोज्ड लिखो या इट इज सजेस्टेड लिखो। फिर क्या लगाओ? दैट। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट फॉर्म। चलिए देखते हैं इसको। लेट हिम स्पीक, लेट तो लेट है, हिम और क्या बचा? स्पीक। आपको क्या लगता है स्पीक ऑब्जेक्ट है? स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना, बोलना ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब है ना। तो ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। हिम का सब्जेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? ही। अगर हर रहता तो क्या कर देते? सी। अस रहता तो अस का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता? वी, है ना, ये तो समझ गए आप। तो लेट हिम स्पीक। अब हम इसको बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। लेट हिम स्पीक, तो आपको लगता होगा सर इसकी हिंदी क्या होती है? उसको बोलने दो, ये हुई हिंदी। लेट अस प्ले क्रिकेट, चलो हम लोग क्रिकेट खेलें, उसको बोलने दो। प्रस्ताव नहीं है, सुझाव है, बोलने दो। चलो क्रिकेट खेलें, प्रस्ताव है कि चलो हम लोग होली मनाएं, प्रस्ताव है कि प्रस्ताव रखा मैंने कि ऐसा करना चाहिए। तो जिसमें जो बोलो, प्रस्ताव है तो प्रपोज्ड लिखेंगे और सुझाव दिया गया तो सजेस्टेड लिखेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। लेट हिम स्पीक, स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या कहा मैंने, या तो इट इज प्रपोज्ड होगा या इट इज सजेस्टेड, ये बदलते रहिए। प्रपोज्ड या, इसीलिए हमने इसको अंडरलाइन किया, यहाँ ऑब्लिक है, यानी प्रपोज्ड रहेगा या सजेस्टेड। तो चलिए हम बनाते हैं। तो इट इज सजेस्टेड लिख लिया, इट इज सजेस्टेड। फिर क्या लगाना था? दैट लिखे। उसके बाद क्या लिखा? ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट फॉर्म। इसमें लेट ऑब्जेक्ट नहीं है, स्पीक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। तो हिम का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? ही। तो इट इज सजेस्टेड दैट ही। फिर क्या लिखना था? शुड लिख लिया, शुड। क्रिया का पहला रो V1 लिखा हुआ, तो क्रिया क्या है? स्पीक, तो स्पीक का स्पीक हो गया। इट इज सजेस्टेड दैट ही शुड स्पीक, या सुझाव दिया जाता है कि उसे बोलना चाहिए, ये हुई हिंदी। जैसे दूसरा देखिए, लेट अस प्ले क्रिकेट, लेट अस प्ले क्रिकेट, तो इट इज प्रपोज्ड। फिर क्या लगाया? दैट लगा दिए। ऑब्जेक्ट को किसमें करना? सब्जेक्ट में कर दो। तो अस है ऑब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। फिर क्या लिखेंगे? शुड। फिर क्या लिखेंगे? प्ले। और बचा रह गया था क्रिकेट, तो क्रिकेट भी लिख दिए, वी शुड प्ले क्रिकेट। ऐसा यह प्रस्ताव दिया जाता है कि हम लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए, ये हुई हिंदी। अगला लास्ट वाला देखते हैं।
क्या लिखा है? जिन वाक्यों में निवेदन या याचना, याचना मतलब प्रार्थना, जिन वाक्यों में प्रार्थना किया गया हो, निवेदन किया गया हो, उन वाक्यों का पहचान है एकदम। इसको देखिएगा, इसकी सब की देखिएगा अलग अलग पहचान है। ऊपर में जो आदेश वाला था सेंटेंस पढ़ोगे तैसे जान जाओगे कि यहाँ पर आदेश दिया गया। सलाह वाला सेंटेंस पढ़ करके जैसे हिंदी करोगे तैसे लगेगा जैसे अगर हम कहें कि ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात मानो, सलाह दिया गया। टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली व्यायाम करो, सलाह दिया गया। तो जिसमें सलाह दिया गया वो सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाएगा, जिसमें आदेश दिया गया उसको सेंटेंस को पढ़ करके ही समझ में आ जाएगा। हाँ, जिन वाक्यों में प्रस्ताव सुझाव है तो इसका पहचान है लेट लगा रहेगा, और जिन वाक्यों में निवेदन किया गया है उसमें या तो प्लीज लगा रहेगा या काइंडली लगा रहेगा। एकदम पहचान है क्लियर, उसमें प्लीज या काइंडली रहेगा। जैसे क्या है? प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, या जैसे काइंडली कॉल द डॉक्टर। आपको लगता होगा सर प्लीज मतलब तो मुझे मालूम है कृपया होता है, काइंडली मतलब भी कृपया ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा याचना का बोझ ज्यादा रहता है, ज्यादा विनम्र हो जाते हैं लोग। तो काइंडली कॉल द डॉक्टर, कृपया डॉक्टर को बुलाइए। अब हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। क्या लिखा है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी सेंटेंस में शुरू में क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर क्या लिखते हैं? एक्टिव सेंटेंस विदाउट प्लीज और काइंडली, यानी जो एक्टिव सेंटेंस है वो पूरा का पूरा लिखेंगे, लेकिन खाली क्या हटा देंगे? विदाउट। विदाउट मतलब के बिना। किसके बिना? प्लीज और काइंडली, यानी प्लीज और काइंडली को हटा करके और जितना बच गया वाक्य में वो सब लिख देंगे। तो सपोज कीजिए प्लीज हेल्प मी में प्लीज को हटा दिए तो क्या बचा? हेल्प मी नहीं बचा। काइंडली कॉल द डॉक्टर में काइंडली हटा दिए तो क्या बचा? कॉल द डॉक्टर। तो अब बनाते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा, आगे क्या है? एक्टिव सेंटेंस विदाउट प्लीज और काइंडली, यानी एक्टिव में जो क्वेश्चन है वही लिखे, खाली प्लीज और काइंडली को हटाइए। तो बचा क्या? हेल्प मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे निवेदन किया जाता है कि आप मेरी मदद करें। जैसे दूसरा है काइंडली कॉल द डॉक्टर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, काइंडली को हटाया, बचा क्या? कॉल द डॉक्टर, आपसे निवेदन किया जाता है कि डॉक्टर को बुलाएं। तो ये थी आपकी आज की क्लास, और आज की क्लास और अगले क्लास का होमवर्क एक साथ दिया जाएगा, लंबा होमवर्क रहेगा। आज की क्लास को थोड़ा सा घर पर मनन करें, चिंतन करें, समझें, और मुझे पूरा भरोसा है जब आप मनन चिंतन करोगे तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आपको समझ में ही नहीं है। इतना अच्छा से समझ में आएगा कि दूसरे को आप समझा दोगे। तो वो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, खूब अच्छे से इसको 1, 2 बार 3 बार लेक्चर को पढ़ें, और व्यूअरशिप को बढ़ाएं, सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई ज्यादा किसी को आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।